I'm the president of the Travel Agents Association of India. I'm also the vice chair of Faith and the chairperson for THSC, which is the Skill Council under the Ministry of Skill and Development. I would say tourism is a very growing phase of India, especially now with the infrastructure getting better and better. And our Honorable Prime Minister's vision of creating a 5 trillion economy is truly here to stay. The way they have delegated money in this budget for marketing to states, I think is a great opportunity. Because even the states are looking for inbound and domestic, both. But we also need to talk about outbound travel, because which we know is going to be growing a lot. It's going to be like 42 billion by 2030. And I always say there can be no inbound without outbound, and there can be no outbound without inbound. Because अगर फ्लाइट ही नहीं चलेंगी और फ्लाइट भर के नहीं जाएंगी तो फ्लाइट का चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. So we have to together balance inbound, outbound and domestic. OTM is a wonderful platform to actually network and get to know new products. Our members, which are 3,000 in India, are always looking for new destinations, new ways of working. Post-COVID, we have seen that people want to collaborate more. They want to, meet face-to-face with the new people who have come into this business at this time, and also reconnect with the old ones. Because the 3 years has been a very long period, so a lot of people have lost touch. So I think a platform like OTM is a very, very positive way of working forward and building your businesses. Because I think travel is all about experiences, and we need to create those experiences, and only a travel agent can do that. But it has to be done with partnership and collaboration with other destinations and DMCs and NTOs of different countries. So I think that this OTM brings you a huge opportunity to do that, and we need to keep evolving in tourism, because tourism is always evolving. You cannot have the same medicine every day like tourism. Tourism has to be different, because every time I go to a country or I visit any state, or even if I come to Mumbai, I need to go to some other destination. I can't keep going to a repeat destination. So we need to create this for the traveler to enjoy. I always say tourism is about repeat customer. You just can't go to a country once and say tourism is done. You need to keep coming back. So we need to be the ambassadors of our own country and also spread the word of tourism. One thing which I want to say is tourism doesn't have boundaries. We need to build on it. Tourism, we saw during COVID time, we could not control the virus though the border was closed, because the virus doesn't need a boarding card. So we need to keep our borders open and move forward to develop tourism. And I think that is the way the tourism industry should be looked at. One thing I'm going to say, while I'm getting your, support here from the media, that we need our finance minister and our honorable prime minister to look at the tax structure for the travel agents. TCS is the tax which is collected at source is becoming too high for us to be competitive in the market. We need to see that it is removed, and so that we can do more business. Otherwise, India will not be able to sell any other destination except India, which will not be good for the entire industry. इंडिया के लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा जब TCS कम हो जाएगा या चला जाएगा. एक्चुअली हम उसको कह रहे हैं हटा दीजिए, जबकि वो कह रहे हैं आपको उस पर क्रेडिट इनपुट मिलता है आपके 26AS फॉर्म में. पर कोई भी क्लाइंट पहले पैसा नहीं देना चाहता और कोई भी बाद में क्लेम नहीं करना चाहता. तो उससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस लोग बाहर के लोगों से कर लेंगे. बहुत लोगों ने दुबई ऑफिस खोल लिया है, श्रीलंका खोल लिया है, कहीं भी खोल लेंगे और वहाँ से बिजनेस होना शुरू हो जाएगा. तो बिजनेस तो हमारी कंट्री का जा रहा है, टैक्स तो हमारी कंट्री का जा रहा है, बिजनेस बाहर से हो रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है. आउटबाउंड कभी बंद नहीं कर सकते आप, जितना मर्जी चाहें. आपको इनबाउंड करना है और डोमेस्टिक भी करना है, पर आप आउटबाउंड को ये नहीं कह सकते कि आउटबाउंड बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर तो कंट्री का कोई फायदा ही नहीं है. तो इसलिए हमको लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को हमारी तरफ देखना चाहिए. और अगर ट्रैवल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो मेरे को लगता है कि बजट बहुत अच्छा है. एक तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कम पैसा मिला है, उनको थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था. वो 24 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए मार्केटिंग के लिए और हमारे साथ प्राइवेट पार्टनरशिप्स करने के लिए. पर मेरे को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री और फ्रेटर्निटी को देखना चाहिए. एक तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस कंकरेंट लिस्ट में ज़रूर लानी चाहिए कि हम लोग उसके ऊपर हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स अपनी भी बिल्ड कर सकें. यहाँ पे 50 कंट्रीज़ ने और बाहर की कंट्रियों ने 29 स्टेट्स ने किया है इंडिया की, और 1250 बूथ हैं यहाँ पर.
किस तरीके की? हर तरीके की कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ की कंट्रियाँ वहाँ के जो हमारे साथ मिल के काम कर सकती हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से किसी डेस्टिनेशन भेजा तो हमको वहाँ भी तो कोई चाहिए हैंडल करने के लिए, तो वो कंपनियाँ हैं और कंट्रीज़ हैं। जो कंट्रीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं वो चाह रही हैं कि टूरिज़्म बढ़े। जैसे हम कहते हैं इंडिया में टूरिज़्म बढ़े, वो कहते हैं हमारी कंट्री में टूरिज़्म बढ़े। थैंक यू। Very good day to all of you. I'm Abdullah Malsum. I am the Minister of Tourism from the Maldives. Maldives team is here in force at OTM. The Indian market is very important for Maldives. We have had India as the top market last 3 years, year 2020, 2021 and 2022, and we hope that it will be the lead market this year also. At the moment, we have got very good connections from India to Maldives. We have over 50 flights each week, and the Maldives product today is very ideal for the Indian market, because sometimes people think Maldives is very expensive because you see all the Bollywood stars doing the Instagram and Twitter and all that. Well, Maldives has got the expensive ultra luxury products, but also Maldives has got the local island tourism. There are small hotels and guest houses in over 116 islands, and they offer very good product. So I invite the whole Indian community. I'm sure many of you have already been there, but for those people who have not been there, come and experience the Maldives. We have got a very good experience for each one of you. Look forward to welcoming you in the Maldives. Thank you. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो इस प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइज़र है, उसका फाउंडर और चेयरमैन हूँ। ये OTM नामक प्रदर्शनी ये एशिया की सबसे बड़ी पर्यटन की प्रदर्शनी है, जिसमें सारे विश्व से 50 देशों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और सारे भारतवर्ष से करीब 30 स्टेट्स से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ये जियो कन्वेंशन सेंटर में 2 फ्लोर पे ये हाउसफुल है बिल्कुल। ये ग्राउंड फ्लोर पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं और ऊपर की 3rd फ्लोर पे डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स हैं। इन 3 दिनों में ये एक B2B यानी कि जो बिज़नेस टू बिज़नेस प्रदर्शनी है, इसमें हम करीब 30,000 सारे भारतवर्ष से जो बायर हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आकर यहाँ पर जो सेलर्स हैं, जो अपने डेस्टिनेशन को बेच रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, होलसेल डील करेंगे। और ये कोविड के बाद फुल फ्लेजेड बहुत बड़े रूप में हो रही है, तो ये बहुत एक खुशी का हमारे लिए मौका है, क्योंकि गत 2 वर्षों में कोविड पैंडेमिक की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर अभी ये प्रदर्शनी को देख के ऐसा लगता है कि वो पूरा बाउंस बैक कर गया है और अभी पूरे जोरदार एक तरीके से मार्केट वापस उभर के आया है। जो डोमेस्टिक और जो अंतर्देशीय, जो विदेशों में जो भारतीय जाते हैं, ये दोनों ही मार्केट काफ़ी गर्म हैं। इंडिया के लोगों को तो जाने के लिए बाहर के लिए क्या-क्या सुविधा रहेगी वैसे? अभी तो देखो बहुत सी कंट्री प्रमोट कर रही हैं और उसमें बहुत से अभी कंट्री में ऐसा है कि भी स्पेशल ऑफ़र है, प्राइसेस अच्छे हैं। एयर टिकट का भी थोड़ा भाव ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी लॉस रिकवर कर रहे हैं अपना पहले का, लेकिन फिर भी अभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो जो अभी अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और विद इन इंडिया भी अभी कोविड के वक्त ऐसा सबने डिस्कवर किया कि बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं, और उसमें भी यहाँ के लोग जो पहले विदेशी जो बाहर से आते थे उस पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, अभी इंडियन मार्केट पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी कितने देश के जो कंपनियां हैं जो लगे हैं आज? हाँ, ये इसमें इसमें 12,500 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये 50 देशों से
50 कंट्रीज और 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी भारत के लगभग सभी स्टेट से पार्टिसिपेंट्स का। सर अगर अदर कंपनी भी इस पार्टिसिपेंट इस एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट लेना चाहे तो उनके लिए क्या करें? जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक उनके लिए किराया होता है 3 दिन का, वो किराया दे के लेते हैं, और जो इंटरनेशनल के लिए अलग है, डोमेस्टिक के लिए अलग है। और ये प्रदर्शनी हम पिछले 30 सालों से करते हैं, तो हमारा भी एक रिलेशन है इनके साथ में, जो एग्जिबिट करते हैं उनके साथ में। और उनको एक डिपेंडिंग ऑन कितनी जगह ले रहे हैं, कितने सालों से ले रहे हैं, एक अच्छी प्राइस पे हम देते हैं जो उनको अफोर्ड कर सके। और उनका काफ़ी इसमें जो उनको सुविधा होती है, क्योंकि इतने सारे लोगों से वो 3 दिन में ही मिल सकते हैं, जो कि अगर वो अपने इंडिविजुअली बाहर मिलने की कोशिश करें तो उसमें शायद उसमें वो महीनों लग जाएं और काफ़ी खर्च हो, तो इसलिए वो काफ़ी पसंद करते हैं इस प्रदर्शनी। सर ये एग्जीबिशन लगभग कितने दिन चलने वाला है? ये 3 दिन का एग्जीबिशन है, आज पहला दिन है और पहले दिन में ही काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। आप देख रहे हैं सभी बहुत बिजी हैं, और इसमें विजिटर जो हैं वो सारे भारतवर्ष से आते हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं सारे विश्व से आते हैं। कुछ और करना है?